Hello everyone, my name is Adish Maiti and by profession I'm working with a digital marketing agency in platforms like Google AdWords, Facebook, Instagram and other social media platforms. Apart from that, I have my online clients. I'm also into fitness training. Of course, I'm a natural bodybuilder from the start, and it will be the same till the end. So, my journey from a footballer to becoming a natural athlete started in the year 2011 when I left playing professional football. I did my MBA. So from there, from there I started working out, and it has been almost 9 years. I am into like bodybuilding and workout. Yeah, so the journey was always tough. Like it was never easy because when I started working out in 2011, मतलब मुझे सुबह उठना पड़ता था because I had my lectures throughout the day. So सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करने के बाद फिर घर आओ, रेस्ट लो, फिर लेक्चर्स अटेंड करो. सो थोड़ा हेक्टिक हो जाता था एंड देन वंस आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2013 मुझे एवरी डे फ्रॉम वाशी नवी मुंबई टू अंधेरी ट्रैवल करना पड़ता था which used to take me like अराउंड 3 आवर्स. दिन का 3 घंटा ट्रैवलिंग में जाता था, फिर उसके बाद वर्कआउट. बट पैशन एंड कमिटमेंट कभी कम नहीं हुआ, तो मैं जाते रहता था मैन. उसके बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद लोधा ग्रुप इन 2015. तो फिर मुझे वाशी से लोअर पर ट्रैवल करना पड़ता था. सो इफ यू आर नॉट अवेयर इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स. दिन का 4 घंटे का ट्रैवलिंग करने के बाद फिर रात को मैं जिम जाता था. Of course, one of my biggest inspiration was my dad. Matlab, he was an ex-international football player. He played for India in the 1978 Asian Games, and this person has always been into fitness. Like दिन का एक एक घंटा भागते थे and at this age right now he does calisthenics एंड पुशअप्स पुलअप्स जितना भी घर पे नियम वगैरह करते हैं. एंड उनको देख के मतलब एक अपने आप मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं आज मतलब जिस दिन ऐसा लगता है कि वर्कआउट नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है, बट डैड को देख के लगता है नहीं भाई जाना है, आज वर्कआउट करना ही है. So yeah, of course, my dad is there, and apart from my dad, my family has always been very supportive. My sister, my fiance, my mom, they have always supported me in this noble cause, and yes, they are my backbone. They are now coming to the pros and cons of being a natural athlete. So the first pros, obviously, staying natural is much better than taking artificial stuff. So each one of us is aware of it. So मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. And cons, if I consider steroid bodybuilder, obviously सबको पता है has a better shape over a natural bodybuilder with the bulking part and with the rippedness. Obviously उन लोगों का body structure बहुत better रहता है. So people usually consider them over natural bodybuilders. So if I say cons, ये cons हो सकता है, but end of the day I am not against steroid bodybuilders. मेरे काफ़ी बचपन के दोस्त हैं जो बॉडी बिल्डिंग में है, उन लोग anabolic steroids लेते हैं. It's okay. It is their profession, but I'm not against them. But the thing is, I'm not in favor of them because I myself is a natural athlete, so I promote staying natural. That's it. Nothing against them. So the biggest difference between a steroid bodybuilder and a natural bodybuilder is the fat percentage. मतलब जो साइकिल फॉलो करते हैं यूजुअली ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, उन लोगों का फैट परसेंटेज 5 to 6 के बिटवीन रहता है, which is I won't say next to impossible. पॉसिबल है फॉर अ नेचुरल एथलीट, बट बहुत बहुत मुश्किल है आपको 5 to 6% बॉडी फैट्स में आने को, वो भी नेचुरली. इट इज़ लाइक बहुत डिफिकल्ट है. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आपको एक मसल मास मेंटेन रखना है, आप उतना भी मतलब ड्रेन नहीं कर सकते आपको बॉडी को, तो वो एक डिफरेंस है. एंड सेकेंड डिफरेंस इज व्हेन समवन इज ट्रांसफॉर्मिंग. आप अगर नोटिस करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल मी, मतलब इट टुक मी अराउंड लाइक 4 to 5 years टू मतलब ब्रिंग इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक मैं स्किनी था, स्किनी से फिर मैं एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर बना, मुझे काफ़ी टाइम लगा. बट आर्टिफिशियली और इफ़ यू टेक स्टेरॉइड्स ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, ट्रिगर करता है, एंड फॉर विद इन 6 to 8 months आप बना सकते हो बॉडी. एंड यूजुअली ऐसे प्रोसेस फॉलो किया जाता है इन द इंडस्ट्री.
So it's okay. I will again mention कि I am not against it, but that is the main difference. I am just explaining myself. Yes, personally मुझे काफ़ी DMs आते हैं, comments भी आते हैं of people accusing me that I am not a natural bodybuilder. मैंने मतलब steroids ली है. ठीक है, कोई 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 मतलब ऐसा पर्सनल ग्रजेस या गुस्सा नहीं है मुझे उन लोग के खिलाफ, बिकॉज इट्स द पर्सन चॉइस, इट्स द पर्सन थिंकिंग. क्योंकि मुझे पता है मैं नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ और मैं रहूँगा. सो द थिंग इज इट्स ओके, मैं कॉम्प्लीमेंट जैसा लेता हूँ एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट मोटिवेशन. मैं और मोटिवेट करता हूँ मुझे वर्कआउट करने के लिए ये सब. My only message to the upcoming natural athletes is कि भरोसा रखना है खुद के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए बहुत टाइम लगता है. मुझे पर्सनली 4 से 5 साल लग गए बॉडी बनाने के लिए. शायद आपको उससे कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन भरोसा नहीं तोड़ना है खुद के ऊपर. एंड यू शुड स्टे नेचुरल, स्टे अवे फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस. नेचुरली भी बॉडी बन सकता है. That is quite evident, and you should be proud of yourself because you are natural and you have achieved something. So natural रहना है जिंदगी भर. And the second most important thing is आपको लगातार रिसर्च करना है, पढ़ना है ये टॉपिक. अगर आपको इसमें पैशन नज़र आता है खुद का, so do some good course. For example, personally I was doing a course from American College of Sports Medicine and it has changed my life. मेरा मतलब पूरा पर्सपेक्टिव नज़रिया बदल गया है. एटलीस्ट इनटू वर्किंग आउट, लाइक जिम वर्कआउट एंड फिटनेस के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया है. एंड अभी राइट नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू like train anyone because मेरे को उतना नॉलेज आ गया है. So keep learning, keep growing and stay natural. My upcoming goals is pretty clear and simple. Like I want to make a mark in the fitness industry. एक renowned fitness trainer बनना है मेरे को, and पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना साल लगेगा, but yes, होगा ये मुझे पता है. And of course my fiance is a psychiatrist, तो उनके साथ मुझे खुद का कुछ तो स्टूडियो जैसा स्टार्ट करना है, मेंटल एंड फिटनेस हेल्थ स्टूडियो टाइप. सो या दैट इज माई वन ऑफ माई बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स इन द फ्यूचर. हु इज योर बिगेस्ट राइवल? क्या सवाल है भाई. पर्सनली राइवल ऐसा कोई है नहीं इंडस्ट्री में, ना ही मैं पर्सनली कोई मतलब ऐसा सोचता हूँ मतलब कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर है. सब मेरे दोस्त है, सब मेरे भाई है, एंड सबका अच्छा होना चाहिए. पर्सनली मैं ऐसा किसके बारे में सोचता नहीं हूँ कि मुझे इसके आगे जाना है या ये मेरे से आगे क्यों पहुँच गया है. ऐसा कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है. सबका खुद का जर्नी है, खुद का लाइफ के ऑब्जेक्टिव रहता है, वो पूरा करना है. सो आई एम रियली सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास है नहीं. Now, people who inspire me from the industry, like there are quite a lot of people. Like first is Mr. Abbas Ali, a celebrity trainer who owns a gym known as Bodyholics. काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ उनको, काफ़ी बड़े इंस्पिरेशन रहे, एंड शायद एक दिन उनके जितना बड़ा बन जाओ पता नहीं, पर बहुत 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 मोटिवेट करते हैं मुझे. अपार्ट फ्रॉम हिम मिस्टर रॉकी ऊचिल है, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. उनका भी खुद का जिम है, एलिवेट 365 नई मुंबई में. वो भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं. एंड कार्तिक जुनैना है, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरे कलीग थे एससीएसएम में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे साथ में. उनका खुद का किक बॉक्सिंग का क्लासेस वगैरह वो लेते हैं. अच्छे दोस्त हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं इन लोग. अपार्ट फ्रॉम देम ऑल्सो पर्सनली मुझे डॉक्टर स्नेहा आर्या, जो कि एक साइकाट्रिस्ट है, वो मुझे मतलब काफ़ी मेंटल एस्पेक्ट से मोटिवेट करती है. मुझे एवरी डे इंस्पायर करती है कुछ नया करने के लिए. ऑल्सो माई सिस्टर आयुष माइती, उनके बिना शायद मैं आज जिधर पहुंचा हूँ शायद नहीं पहुंच पाता था. सो ये लोग हैं. अपार्ट फ्रॉम देम इंस्टाग्राम में ऋतु कुमार सिंह है, जो एक मॉम है, उनका खुद का ब्लॉग्स है अबाउट पेरेंटिंग. उनका भी प्रोफाइल मुझे काफ़ी इंस्पायर. एंड फाइनली टू द मेन क्वेश्चन, लाइक द आइसिंग ऑन द केक, what are your views about Matfit Junkie and Be Matfit Junkie? बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो दिवांशु भाई. Wish you great success, and the best part about this channel is that
दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोफाइल्स, मतलब जिनका इतना कोई ज़्यादा फॉलोअर भी नहीं है एंड इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, नॉट ट्राइंग टू डिमीन देम बट द थिंग इज जिनका उतना भी एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बट है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उनको भी प्रमोट करते हैं, मतलब कुछ भेदभाव नहीं करता है ये चैनल, सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। एंड यस, मैं आई विल विश कि ये चैनल मतलब और फॉलोअर्स पाए, लोग और फॉलो करें एंड जो ऑब्जेक्टिव है मतलब हेल्दी लिविंग एंड स्प्रेडिंग फिटनेस अमंग द मासेस से पूरा हो। दिव्यांशु भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड खुश रहिए। थैंक यू फॉर दिस, गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक गिविंग अ शॉर्ट just about my fitness journey. Thank you for this opportunity and wish you great success in the coming years. Thank you so much. Bye. Hey guys, I hope you enjoyed the video. If you like our video and if you want to promote yourself and motivate others, you can connect with us. To connect, you can find all the details in the description. Please like, share and subscribe to my video. To subscribe to my channel, click here. And to watch our previous videos, you can click here. Thank you so much.